Okay, the next part, the next definition is this racemic mixture. Now, what is a racemic mixture? A mixture which is comprising of equal quantities of two enantiomers is called a racemic mixture. Also, it is called a racemate. If I have a mixture comprising 50-50 ratio of two enantiomers, then it is called a racemic mixture. For example, let's say I have this and I have this. Okay. Now these two are enantiomers of each other. A mixture of these two, a mixture of these two enantiomers in equal quantities is called a racemic mixture. So what is a racemic mixture? A racemic mixture has two components. Those two components are enantiomers of each other, and both the components are in equal amounts. So the quantity of each enantiomer is same. Now, since the quantity of each enantiomer is same, the overall mixture is going to be optically inactive. Why optically inactive? This is optically active. This is also optically active. Both of them are optically active. But as you know, these two are enantiomers of each other. So if one is dextrorotatory, the other will be levorotatory. If one is dextrorotatory, then the other enantiomer has to be levorotatory, which means the net rotation will be zero. Why? Because one will rotate light towards right and the other will rotate light towards left exactly by the same amount. So the net rotation is zero. So a racemic mixture is optically inactive. Okay, you can start writing. Okay, another example. Let's say this molecule and this molecule. Are these enantiomers of each other?
Are these enantiomers of each other? Yes. Yes. Why? Because if you look at this portion, then there has been an inversion here. Hence, these two are enantiomers of each other. तो अगर इन दोनों का 50-50 मिक्सचर है, equal quantities, this and this, then again that will be a racemic mixture. So a racemic mixture has both the enantiomers in equal quantities. And hence a racemic mixture is optically inactive. A racemic mixture is optically inactive. Formation of a racemic mixture is called racemization. So if a racemic mixture is being formed, then we say that racemization has happened. So 50% of each enantiomer is present in a racemic mixture. Equal quantities means what? 50% of each enantiomer will be present. सर एक बार स्क्रॉल अप कर देना. Okay, is it clear? Yes, sir. Okay. This was about a racemic mixture. We will need the concept in future. Next concept. Pseudochiral center. Now, what is a pseudochiral center? So I'll give an example first. Look at this.
Okay, now see, this carbon atom at the bottom is a chiral carbon atom. This one. Similarly, the carbon atom which is at the top, this one is also a chiral carbon atom. Now, if I ask you about the middle carbon, that is this one, then what will you say? Is this chiral or not? Or it may be chiral and it may not be chiral. It is not chiral, sir. Why? It is chiral. सर सी के ऊपर और नीचे सेम ग्रुप्स अटैच्ड हैं. ओके, तो मतलब वैसे देखा जाए तो हाँ, तो ये कहने का मतलब है कि ये जो ग्रुप है और ये जो ग्रुप है, these two groups are same, right? यस. चेक करो बाकी सब लोग, ये जो मैंने अभी दो ग्रुप्स को रेक्टेंगल के अंदर दिखाया है, these two groups are same, करेक्ट? और ये जो बीच वाला कार्बन है, इसके साथ एक OH है, एक H है, तो ये तो अलग हो गए. और ये है और ये है, तो वैसे अगर देखा जाए प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ chiral सेंटर के हिसाब से, then this carbon is not fully chiral. It is not chiral. Why? Because these two groups are identical. ऊपर और नीचे जो मैंने रेक्टेंगल के अंदर दिखाए हैं वो आइडेंटिकल ग्रुप्स है. लेकिन यहाँ पे एक कैच है, इसको देखो अभी एक चीज ध्यान से, ये जो नीचे वाला chiral कार्बन है, बिल्कुल नीचे वाला, तो ये नीचे वाला chiral कार्बन जो है, that is this one, this can have, let's say, once R configuration. R भी हो सकता है, S भी हो सकता है. तो मानो एक बार अगर R है और ऊपर वाले का मानो S है, दिस कार्बन अगर S है और ये वाला कार्बन मानो R है, तो क्या हो गया? मतलब इसमें भी बिल्कुल ऊपर वाला जो पूरा ग्रुप है अभी और नीचे वाला जो पूरा ग्रुप है, अभी वो दोनों अलग कैसे ट्रीट होंगे? Right? Now these two groups which you see, that is the groups which have been put inside the rectangles, are now not the same. वो डिफरेंट कहलाएंगे. क्यों डिफरेंट कहलाएंगे? क्योंकि उनमें एक देखो ये वाला S है और ये वाला R है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ chiral कार्बन का. तो as a full group we will say that this is not same as this. Now these were different groups. तो अब बन गया ये वाला बीच वाला कार्बन chiral. यस. तो इसके लिए बीच वाले कार्बन को एक्चुअली बोलते हैं स्यूडो कायरल सेंटर. स्यूडो कायरल का मतलब क्या है? वो हर वक्त कायरल नहीं है, डिपेंड करेगा कि उसके ऊपर और उसके नीचे के कार्बन के कॉन्फ़िगरेशंस क्या है. Hence this is called a pseudo chiral center. तो क्या है pseudo chiral का डेफिनेशन? एक कार्बन एटम, okay, which is bonded to two identical groups. Groups are same. Which groups? The ones that have been put inside the rectangle. So a carbon atom which is bonded to two identical groups is a pseudo-chiral center. Okay, is a pseudo-chiral center if the two identical groups can show GI or OI. मतलब क्या? ये जो ग्रुप्स है वो ग्रुप्स के अंदर GI या तो OI होना चाहिए.
दोनों ग्रुप्स के अंदर Gi और OI अगर होंगे तो ये बीच वाला जो कार्बन होगा वो स्यूडो कायरल कार्बन कहलाएगा। ओके, सर ये आपने मतलब दोनों ग्रुप्स को कैसे मतलब अलग बताया, वो समझ नहीं आया। कौन सा? मतलब जो ऊपर आपने बताया और एक नीचे एस के हाँ, बाद। तो ऊपर और नीचे अलग हो जाएंगे अगर अगर मानो ये वाला कार्बन ऊपर का S हो गया और नीचे वाला कार्बन R हो गया, तो इस पूरे ग्रुप को हम लोग अलग बोलेंगे इससे। और अगर ऐसा हुआ कि दोनों ही मानो R है, तो फिर दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप आर सेम। सर फिर मतलब एस और मतलब आर किस चीज पर रेफर करते हैं? वो तो R और S करेंगे ना, वो तो बात की बात है, वो तो हम लोग देखेंगे कौन वेज पे कौन डैश पे। बट आई एम सेइंग पॉसिबिलिटीज के बारे में कि ये जो बीच वाला कार्बन है वो स्यूडो कायरल क्यों है, उसका रीजन बोल रहा हूं मैं। तो स्यूडो कायरल इसलिए बिकॉज उसके साथ जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, दैट इज दिस वन रेक्टेंगल ऊपर वाला और नीचे वाला, वो दोनों के दोनों आइडेंटिकल ग्रुप्स तो है, लेकिन दोनों ग्रुप्स में आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। कौन सा टाइप का आइसोमेरिज्म पॉसिबल है यहाँ पे? आर और एस। तो अगर ऐसा हो गया कि कोई ग्रुप के अंदर आर और एस पॉसिबल है, तो फिर जो बीच वाला कार्बन है वो स्यूडो कायरल कहलाएगा। ओके, स्यूडो कायरल सेंटर। अब मैं, हाँ यस सर। क्लियर हो गया अभी? सर Yes, उसे sir. स्लो डाउन करेंगे। हाँ, पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं। और एक एग्जांपल देखो, मुझे बताओ ये स्यूडो कायरल है या नहीं। ओके, आई एम ड्राइंग दिस, टेल मी whether this is pseudo chiral or not. Is this pseudo chiral? ये वाला, is this pseudo chiral? Okay, I'll draw it a little bigger. Is this carbon atom pseudo chiral? Yes, sir. क्या क्या ग्रुप्स अटैच्ड है? एक क्लोरीन अटैच्ड है, एक ब्रोमीन अटैच्ड है, दो अलग हो गए क्लोरीन और ब्रोमीन। और एक ये अटैच्ड है पूरा, और एक ये अटैच्ड है पूरा। तो ये दो ग्रुप्स जो रेक्टेंगल्स में दिखाए मैंने, वो दोनों सेम है, देखो आइडेंटिकल ग्रुप्स है। बोथ आर आइडेंटिकल इफ यू सी द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। इतना क्लियर हुआ कि दोनों आइडेंटिकल क्यों है? Yes, sir. Yes. दोनों आइडेंटिकल है, लेकिन लेकिन दोनों के अंदर ही देखो जीआई पॉसिबल है, राइट? इसके अक्रॉस जीआई पॉसिबल है, इसके अक्रॉस भी जीआई पॉसिबल है, करेक्ट? So this carbon atom becomes a pseudo chiral carbon. Any doubt in pseudo chiral?
एग्जाम्पल वापस सुनो। हाँ, तो ये वाला एग्जाम्पल क्या है कि अगर बीच वाले कार्बन की बात की जाए तो बीच वाले कार्बन के पास एक क्लोरीन अटैच्ड है, एक क्लोरीन अटैच्ड है, तो ये तो अलग हो गए। और जो रेक्टेंगल में डाला है मैंने वो पूरे ग्रुप्स दोनों के दोनों अटैच्ड है। ओके, अभी ये जो दो ग्रुप्स है, दिस वन एंड दिस वन, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, आइडेंटिकल है दोनों। लेकिन आप वो बीच वाला जो है, मतलब एक ग्रुप को अगर आप पूरा देखोगे तो इसके अंदर अभी डबल बॉन्ड है, तो इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का स्कोप है। राइट, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का स्कोप है, इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का स्कोप है। Hence, this particular carbon atom will be called pseudo-chiral carbon. तो क्या कंडीशन है pseudo-chiral के लिए? दो आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच होने चाहिए उस कार्बन के साथ, लेकिन वो जो ग्रुप अटैच होंगे आइडेंटिकल वाले दो, उनके अंदर या तो Gi या फिर OI होना चाहिए। ओके, so I'm asking you another one. Tell me whether it is pseudo-chiral center or not. So can you scroll? Wait. Yes, yes, yes. Yeah. Is there any pseudo-chiral carbon here? यहाँ पे कोई है pseudo-chiral carbon? सब बीच वाला क्यों? नहीं होगा। कैसे पता चलता है? देखो, देखेंगे, इसको देखो, एक OH अटैच्ड है, एक H अटैच्ड है, तो दो अलग हो गए। और ये पूरा एक ग्रुप अटैच्ड है और ये पूरा एक ग्रुप अटैच्ड है, करेक्ट। अब जो दो मैंने रेक्टेंगल के अंदर दिखाए हैं, आर दे सेम और डिफरेंट? सेम। दे आर सेम, आइडेंटिकल ग्रुप से दोनों, राइट। दिख रहा है, देखो रेक्टेंगल्स के अंदर सब लोग, रेक्टेंगल के अंदर जो दो चीजें हैं दे आर सेम, सो द ग्रुप्स आर सेम, दोनों के दोनों रेक्टेंगल्स वाले। नाउ क्या चेक करना है अभी कि जो ग्रुप्स सेम है, क्या उन ग्रुप्स में Gi या OI पॉसिबल है, वो चेक करना है। देखो अभी इस वाले के अंदर, दिस इज अ chiral carbon, so this can show OI. This one again is a chiral carbon, so this can show OI. यानी ग्रुप के अंदर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। कौन से ग्रुप के अंदर? जो रेक्टेंगल के अंदर है।
So this carbon will be pseudochiral. बिकॉज स्यूडोकैरल का कंडीशन क्या है, उसके साथ जो दो आइडेंटिकल ग्रुप्स लगे हुए हैं उन ग्रुप्स के अंदर OI या तो GI होना चाहिए। ओके एनी डाउट? So this becomes a pseudochiral curve. Okay, now I'm giving some more examples and keep telling me whether there is pseudochiral carbon or not. You have to answer now. So tell me. सर आप एक बार स्यूडोकाइरल कार्बन के नोट्स दिखा सकते हैं? हाँ होता है शो, बट पहले एग्जांपल्स पता होने चाहिए ना, समझ में तो आना चाहिए, पर फिर लिख के क्या फायदा। Okay, so tell me whether pseudochiral carbon is possible or not. Okay, is there any pseudochiral carbon here? Yes, is there any pseudochiral carbon here? सर जो OH से अटैच है वो कार्बन। Okay, what about the others? बाकी किसी को क्या लगता है बताओ? हाँ सर, वही था ना। नहीं होगा सर। Let's see. इसको देखते हैं अभी क्या है इस वाले को। तो एक OH अटैच्ड है, दूसरा कौन रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, तो 4 बॉन्ड्स दिखाने पड़ेंगे अगर तो केवल हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होगा चौथा बॉन्ड। तो एक H और एक OH और एक ये वाला ग्रुप अटैच्ड है और एक ये वाला ग्रुप अटैच्ड है। Are these groups same? Yes, sir. यस सेम है ना? ये पोर्शन is exactly same as this portion. तो ग्रुप्स आर आइडेंटिकल। अब देखते हैं कि जो आइडेंटिकल ग्रुप है उसके अंदर कोई पॉसिबिलिटी है क्या GI या OI की। So I'm drawing it here again. यहाँ पे ये वाले कार्बन को देखो अभी, यहाँ पे हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे CH3 है और बाकी जो है मतलब ये वाला जो कार्बन है दिस इज अ कायरल कार्बन। Correct, this is a chiral carbon. So optical isomerism is possible for that particular carbon. तो हाँ यहाँ पे OI पॉसिबल है, एक कैरल कार्बन होता है तो OI पॉसिबल होता है हमेशा। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, इन दिस केस आल्सो अगेन दिस इज हाइड्रोजन, सो हियर आल्सो OI इज पॉसिबल। तो मतलब क्या हुआ, दोनों केस में ही OI इज पॉसिबल। तो दो आइडेंटिकल ग्रुप्स है और OI पॉसिबल है उन दोनों आइडेंटिकल ग्रुप्स के अंदर, तो मतलब जो बीच वाला कार्बन रहेगा वो क्या हो जाएगा, स्यूडोकार्बन। सो दिस बिकम्स अ
pseudo chiral carbon. तो सर आइडेंटिकल ग्रुप्स के किसी भी कार्बन आटम को कायरल होना चाहिए। हाँ हाँ, आइडेंटिकल ग्रुप्स के किसी भी कार्बन आटम को कायरल होना चाहिए। किसी भी मतलब मतलब जो ज़रूरी नहीं है ना कि वो स्यूडो कायरल कार्बन से अटैच्ड हो वो तो ये कार्बन। pseudo chiral कार्बन बन गया ना बीच वाला। ये बीच वाला जो है ये तो pseudo chiral कार्बन ही है ना। हाँ सर, बट उससे अटैच्ड नहीं है ना वो कायरल कार्बन। हाँ, दैट इज ओके, वो ओके हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि वो जो ग्रुप है आइडेंटिकल उसके अंदर कोई जीआई या ओआई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके सर। That is the thing. So this is a pseudo chiral carbon. Any doubt in pseudo chiral? Yes, anybody any doubt in this? No, sir. तो ये वाला बताओ फिर। ये वाला जो कार्बन है बीच वाला, is this pseudo chiral? Yes, sir. So I have asked this question कि बीच वाला जो कार्बन है सिर्फ उसकी बात करना है। Is this pseudo chiral? Yes, sir. Anybody for no? हाँ सर होगा। अच्छा, सबको लगता है ये pseudo chiral सेंटर। ओके, लेट्स चेक करो हमेशा अच्छे से तो होगा, समझ में आएगा। Okay, I'm making it here again. OHCl. Now, एक OH है एक Cl है तो दो अलग है, और बाकी क्या है? बाकी ये है पूरा और ये है पूरा। These two are same or not? Are these same? Yes, sir. Yes. Definitely they are same, वो तो सबको क्लियरली दिख रहा है। आइडेंटिकल ग्रुप्स दो हो गए। अब क्या चेक करना है कि अभी आइडेंटिकल ग्रुप के अंदर कोई जीआई या ओआई पॉसिबल है या नहीं है, वो चेक करना है। तो बताओ, क्या इस डबल बॉन्ड के अराउंड कोई जीआई पॉसिबल है? No, sir. Why no? सर बिकॉज एक एंड पे CH2 है और यस करेक्ट, यहाँ पे CH2 है तो यहाँ वी नो दैट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए जो कार्बन है उसमें दो अलग ग्रुप्स होने चाहिए अगर डबल बॉन्ड के अक्रॉस जीआई दिखाना है तो। लेकिन यहाँ पे तो CH2 है तो दो सेम एटम्स आ गए, दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम्स आ गए, तो इसके लिए इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस कोई जीआई पॉसिबल नहीं है। सेम होल्ड्स ट्रू फॉर दिस केस। यस सर। यहाँ पे भी कोई जीआई पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज अगेन दिस साइड इज CH2 एंड पे। तो मतलब जो आइडेंटिकल ग्रुप है उसके अंदर कोई जीआई भी नहीं है, कोई ओआई का तो स्कोप ही नहीं है।
there is no chiral center inside the identical group. तो GI भी नहीं है, OI भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है. आइडेंटिकल ग्रुप के अंदर ना ही GI है, ना ही OI. So then this carbon बीच वाला is not pseudochiral. So what is this then? क्या बोलेंगे उसको? It is not pseudochiral. इतना क्लियर हो गया? Sir. हाँ, सर Yes, प्लीज pseudochiral. sir. एक्सप्लेन दिस अगेन सर, हाँ हाँ. एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए. तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि आइडेंटिकल ग्रुप को आप पहचानो पहले. तो ये आइडेंटिकल ग्रुप है, ये वाला, क्योंकि ये इस तरफ भी है और ये इस तरफ भी है. अभी आइडेंटिकल ग्रुप के अंदर GI या तो OI दोनों में से कोई होगा, देन ओनली द बीच वाला कार्बन विल बी स्यूडोकार्बन. बट यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो कोई GI पॉसिबल नहीं है. क्यों? बिकॉज एंड में CH2 है. तो आइडेंटिकल एटम्स जब आ जाते हैं, जैसे H2 यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स है, अच्छा गॉट इट सर. तो यहाँ पे GI पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ पे भी GI पॉसिबल नहीं होगा, OI भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज OI के लिए वी नीड वन कायरल कार्बन. यहाँ पे कोई कायरल कार्बन भी नहीं है. तो मतलब ये हो गया कि आइडेंटिकल ग्रुप को जो सर्किल किया है मैंने, उस सर्किल के अंदर कोई भी GI या OI पॉसिबल नहीं है. जो भी मैंने सर्किल किया है उसके अंदर कोई भी GI या OI पॉसिबल नहीं है. हेंस द बीच वाला कार्बन विल नॉट बी कॉल्ड स्यूडोकार्बन. तो क्या होगा ये फिर? क्या बोलेंगे इसको फिर? इसको बोलेंगे दिस इज एन अकायरल कार्बन एटम. अकायरल क्या होता है? जो कायरल भी नहीं है, जो स्यूडो कायरल भी नहीं है, उसको बोलते हैं अकायरल. So this is an achiral carbon atom. What is achiral? ना ही chiral, ना ही pseudochiral. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं यहाँ पे इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कितने कायरल है और कितने अकायरल है कार्बन एटम्स, तो क्या बोलोगे? How many carbon atoms are chiral and how many are achiral in this molecule? One chiral and others. ये वाला chiral हो जाएगा, जिसके ऊपर मैंने स्टार मार्क किया है वो chiral हो जाएगा. क्यों chiral हो जाएगा? This is one group, hydrogen is another group, this entire thing is one group and this thing is another group. तो चार अलग ग्रुप्स हो गए, तो ये कार्बन हो गया chiral. chiral. ये क्या हो गया फिर? this carbon achiral. Chiral. This is also achiral and this is also achiral. So there is one chiral carbon atom and there are 3 achiral carbon atoms. Okay. So clear हो गया अभी pseudochiral? Any doubt in pseudochiral?
Yes. Any doubt in pseudochiral? So to answer this question, ये जो बीच वाला कार्बन एटम है, ये क्या है? ऑप्शन ए कायरल, ऑप्शन बी अकायरल, ऑप्शन सी स्यूडोकायरल। क्या है ये? क्या रहेगा ये? कायरल। ओके, और कोई आंसर देना चाहेगा कुछ और या सेम? सर Okay. कायरल होगा। एक H एक OH दो अलग ग्रुप्स हो गए, तीसरा ये ग्रुप, चौथा ये ग्रुप। रेक्टेंगल के अंदर जो बनाया है, आर दे सेम? आर दे आइडेंटिकल ग्रुप्स? नो सर। नो, दे आर नॉट। तो ऑप्शन ए, मतलब ये कार्बन क्या हो जाएगा? ये कार्बन हो जाएगा कायरल। करेक्ट। लेकिन अगर ऐसा होता तो अब क्या होता आंसर? ये कायरल। अब क्या होता आंसर? सर सूडोकायरल GI possible. ओके, एनीबॉडी एल्स? सूडो। Now these two groups are identical, this one and this one, अभी सेम हो गया। करेक्ट। Yes, sir. हाँ, अभी ये और ये सेम ग्रुप्स हो गए दोनों के। अब क्या करना है? अगर सेम ग्रुप्स हो गए तो चेक करना है कि उसमें कोई GI या OI पॉसिबल है या नहीं है। ऐसा ना, उसमें चेक करना है ना कि उसमें कोई GI या OI पॉसिबल है या नहीं है। तो इसमें कुछ है GI OI पॉसिबल? GI पॉसिबल। सर GI पॉसिबल होगा। So across this double bond, GI is possible. Correct? Yes, sir. GI पॉसिबल हो जाएगा ना। तो GI पॉसिबल हो गया मतलब क्या हो जाएगा? ये कार्बन फिर स्यूडो कायरल हो जाएगा, बीच वाला जो है। Okay, any doubt? All right. Last example and tell me whether it is chiral, pseudo-chiral, achiral. I'm asking another question.
उसके बाद आई विल आस्क यू टू नोट डाउन, उसके बाद टाइम दूंगा मैं नोट डाउन करने के लिए। अभी के जो एग्जांपल्स थे वो नोट डाउन कर लो, ऊपर जो है ये वाला। Also note down this one. Have you noted down? यस सर। ये वाला नोट डाउन कर लो और ये वाला। सर ये वाला सीडो है। हाँ, बिकॉज इसमें GI पॉसिबल है। सर यस, कायरल कार्बन एटम मतलब एक साइड में, तो ऑप्टिकल पॉसिबल नहीं है ना हाँ सर? अगर नहीं, दो वो बात है पॉसिबल है, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट रहेगा, वो उसको अभी उसको मत करो। अच्छा सर, ओके। अभी के लिए बस समझो स्यूडो कैरल का मतलब। ओके, बिकॉज अनलेस यू अंडरस्टैंड स्यूडो कैरल नेक्स्ट लेक्चर विल बी वेरी डिफिकल्ट। इसके लिए अभी मैं इतना टाइम स्यूडो कैरल पे दे रहा हूँ। What about this? Is there any pseudochiral carbon? Okay. What about this carbon? Chiral है या pseudochiral है या achiral है? हाँ बताओ। ये वाला जो है pseudochiral. is this what? Chiral, achiral और pseudochiral? सर सूडो का Okay. Anybody else? Yes, sir. Pseudochiral. Yes. Pseudochiral? Yes, sir. Okay, देखते हैं। पहली बात, एक क्लोरीन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो आपस में हाइड्रोजन और क्लोरीन दो अलग ग्रुप हो गए। नेक्स्ट, this is one group attached and this is the other group attached. Are these two same? Yes, sir. These are same, na? यस सर। This one and this one. This two are same. अब क्या चेक करना है कि जो सेम वाला पोर्शन है उसके अंदर कोई GI या OI पॉसिबल है या नहीं है। तो क्या पॉसिबल है इसके अंदर, आइडेंटिकल के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर? वो है
This carbon is again chiral. तो यहाँ पे OI possible है. Similarly, this carbon is again chiral. तो यहाँ पे भी OI possible है. Hence, बीच वाला क्या रहेगा? Pseudo chiral. बीच वाला क्या रहेगा? Pseudo chiral. Note down this example and then we will go ahead. सर एक बार स्यूडो का सॉरी जो स्यूडो पैरल का नोट निकाल सकते हैं क्या? हाँ शो पहले ये कर लो ना, पहले ये वाला पार्ट कॉपी कर लो देन. This is the question, right? Original one. ये लिख लो पहले. So this is a pseudo-chiral center. Done. Copied this one. हो गया कॉपी. Yes. Okay. Now let's go back to the now you can note down. Just good one. सर थोड़ा सा ऊपर जाइए ना.
डन। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए ना, तो नीचे से। डन। ओके, डन टिल हियर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट। तो आपको याद रखना पड़ेगा स्यूडो कार्बन कार्बन का मतलब एग्जाम्पल, इसलिए बोला मैंने लिख लो। नेक्स्ट, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन एलीन्स एंड क्यूमुलिन्स। एलीन्स एंड क्यूमुलिन्स में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखा था, वैसे हम लोग अभी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देख रहे हैं। स्टॉप राइटिंग। First example. Now this is a cumuline because three bonds in sequence. तो एक क्यूमुलिन ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव होगा, वो हम लोग देख रहे हैं अभी। तो उसके लिए फर्स्ट चेक द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड्स। यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3। If the number of consecutive double bonds is odd, then that cumuline is optically inactive. If the number of consecutive double bonds is odd, then the cumuline is optically inactive. तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। How many double bonds are there? 3. 3 is an odd number. That is why this cumuline is optically inactive. ये शॉर्टकट है। एक्चुअल रीजन ये है, because the number of double bonds is odd, this A, this B, X, and this Y, these 4 are lying in the same plane. These 4 are lying in the same plane, A, B, X, and Y. अगर आपका मॉलिक्यूल ऐसा हो जाता है जहाँ पे प्लेनर हो जाता है पूरा, यानी एक ही प्लेन में सब लाई कर रहे हो, तो वो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है।
This has been seen experimentally. कोई भी मॉलिक्यूल जहाँ पे सब एटम्स एक ही प्लेन में हो, that is always going to be optically inactive. Okay, next. What about this? क्या होगा इसका सेकंड वाले का? Sir, again optically inactive. Optically inactive. Yeah, so this is a simple way which I gave you. The trick is simple. Count the number of successive double bonds. What is the value of number of successive double bonds here? 5. 5. 5 is an odd number, and that is why straight away we will say that this is optically inactive. सर आपने वो रीजन क्या बताया था? ये प्लेनर हो जाता है, ए बी एक्स और वाई सबके सब एक प्लेन में लाई करेंगे ना. अगर नंबर ऑफ pi bonds is odd, then the groups lie in the same plane. अब सेम प्लेन में अगर कोई चीज होती है तो वो हमेशा वो चीज ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है, क्योंकि वो प्लेन इटसेल्फ एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाता है. अगर कभी भी ऐसा हो जहाँ पे एक प्लेन में सब एटम्स लाई करें तो मतलब वो उस मॉलिक्यूल को बोला जाता है प्लेनर, एंड एनी प्लेनर मॉलिक्यूल इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है. अगर आपको पता है कि कोई चीज प्लेनर है मतलब बाय डिफॉल्ट दैट इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है. वो पीओएस नहीं हो पाएगा इसके लिए बोलेंगे क्या? पीओएस हो पाएगा ना, ये उसका जो प्लेन है वही तो उसका पीओएस हो जाएगा. अगर मैं बोलूं ये सब एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं तो मतलब क्या हो गया, ये पूरा प्लेन एक पीओएस हो गया ना. हाँ कोई भी प्लेनर मॉलिक्यूल के लिए उसका प्लेन ही उसका पीओएस होता है, और पीओएस होने का मतलब आपको पता है ऑप्टिकली इनएक्टिव. So for any planar molecule, the plane itself is the POS. जिस plane में सब atoms lie कर रहे हैं. So any planar molecule is optically inactive. So any planar molecule will always have a POS. Which is that POS? जिस plane में वो lie कर रहा है पूरा. That itself is the POS. ये हो गया. So 1 and 2 दोनों ही optically inactive है because it's a planar one. A, B, X, Y all lie in the same plane. वो A क्या है, B क्या है, X क्या है, Y क्या है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कुछ भी हो सकता है A, B, X, Y. Okay, third example. Now here A, B, X and Y are not in the same plane. This we have done earlier when we were doing alleles. क्या किया था कि ये जिस प्लेन पे है तो ये उसका परपेंडिकुलर प्लेन पे है, ऐसा प्लेन मान लो. करेक्ट. ये दो अलग प्लेन्स हैं, ये दो अलग प्लेन्स हैं. तो अगर ये दो अलग प्लेन्स में है then definitely we'll have to check whether there is POS or not. तो अगर POS हो जाता है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा.
नहीं होता है पीओएस तो वो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, क्योंकि ये दो अलग प्लेन्स में है। तो वी हैव टू चेक द प्रेजेंस ऑफ पीओएस। Now tell me one thing. Since you know that this plane is different and this plane is different, ये दो अलग planes है, तो अगर मैं बोलूं कि मुझे ये वाला प्लेन से काटना है मॉलिक्यूल को, मतलब ये जो प्लेन है इसको मैं यूज करूंगा टू डिवाइड द मॉलिक्यूल, तो फिर क्या होगा? ये वाला जो प्लेन होगा वो ऐसे पास हो जाएगा। कौन से सी के बीच से पास होगा? इस वाले सी के बीच से पास होगा, और ए एक तरफ रह जाएगा, बी एक तरफ रह जाएगा। ये सब Yes, sir. I'm using this plane to cut the molecule. तो अगर मैं कट कर रहा हूं तो ये दो फ्रैगमेंट्स जो मिलेंगे वो इस टाइप के मिलेंगे, एक ए और एक बी दोनों तरफ। करेक्ट? यहां तक क्लियर है? ओके, ऐसा हो जाएगा। अब मानो ए और बी सेम ग्रुप्स हुए, ए और बी अगर सेम ग्रुप्स हुए तो मतलब मुझे दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने मॉलिक्यूल को। दो आइडेंटिकल पार्ट्स में अगर डिवाइड किया मॉलिक्यूल को तो मतलब कैन आई से देन दिस प्लेन हैज एक्टेड एज द पीओएस, Yes, sir. राइट? So if this plane has to act as POS, in that case क्या होगा? A and B both have to be same. अब उल्टा करते हैं, क्या करेंगे अभी? AB अब वाला उल्टा plane. करते हैं। हाँ, अब ये वाला प्लेन लेते हैं, A और B जिसमें है, and if I say that I'm using this plane to cut the molecule, तो फिर ये वाला प्लेन पास करेगा इस ऐसा, I will get X and Y, two different entities on the opposite sides. करेक्ट? तो अगर मैंने यूज किया ये वाला प्लेन टू कट द मॉलिक्यूल, तो वो ऐसे पास करेगा इस वाले कार्बन के बीच से। करेक्ट? तो अभी अगर x is equal to y, if x is same as y, then can I say that this has acted as the POS? Yes. ओके, तो इससे हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया कि अगर पीओएस एब्सेंट है तो मतलब क्या है? ए, बी और एक्स और वाई के टर्म्स में क्या बोल सकते हैं? इफ आई सेइंग दैट पीओएस इज एब्सेंट फॉर दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, तो मतलब कोई भी पीओएस नहीं है। मतलब इफ पीओएस इज एब्सेंट, कोई भी पीओएस नहीं है। इफ आई एम सेइंग पीओएस इज एब्सेंट, तो मतलब क्या होगा? क्या होना चाहिए उसके लिए नेसेसरी कंडीशन? ए बी एक्स से आ रहे हैं अलग ग्रुप। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे बोल सकते हैं कि a should not be equal to b and x should not be equal to y, ऐसा बोल सकते हैं। तो ही दोनों में से कोई भी पीओएस नहीं होगा। करेक्ट? तो ना ही ये वाला प्लेन पीओएस होगा और ना ही ये वाला प्लेन पीओएस होगा अगर ये दोनों के दोनों कंडीशंस मीट हुए। ये क्लियर हुआ? तो क्या लिखना है फिर इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए जो मैंने भी दिखाया? क्या लिखना है? क्या लिख सकते हैं इसके लिए? वी कैन राइट दैट दिस विल बी ऑप्टिकली active if there is no POS at all, which means
A should not be equal to B and X should not be equal to Y. तो ही बोल सकते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। A और B आपस में अलग होंगे तो कोई पीओएस नहीं होगा। X और Y दोनों में आपस में अलग होंगे तो भी कोई पीओएस नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो व्हाट अबाउट दिस एग्जांपल? यहां से मुझे बताओ, अगर मैंने ऐसा लिया एग्जांपल तो what about this? Will this be optically active? No, sir. Will this be optically active? No. ये अलग है ना, Cl और Br दोनों अलग है। सर ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ना, क्योंकि क्यों? अगर आपने उसे हम राइट नाउ तो अभी उसे एक प्लेन ही कंसीडर कर रहे हैं ना, Cl और Br। ओके, देन सर वो डैश एंड वेज पे नहीं है तो उसकी वजह से वो डायरेक्ट पीओएस बन ही सकता है ना पूरा। ये नहीं, प्लेन डैश और वेज पे है तो वो तो बाय डिफॉल्ट है, वो हर टाइम दिखाता नहीं है क्वेश्चन में, वो तो अंडरस्टूड है ना कि डैश और वेज पे ही है। तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा सर। सो जैसे स्क्रॉल अप करेंगे क्या? सर पहले एग्जांपल पे पीओएस है ना? हो गया सर। पहले एग्जांपल में क्या है? पीओएस है ना? कौन से एग्जांपल में? ये वाला, सर दिस वन? यस सर। हाँ, ये तो वैसे भी इसका जो प्लेन है वही उसका पीओएस हो जाएगा ना। ये प्लेनर है ना, प्लेनर मतलब पीओएस तो होगा ही। इट्स अ प्लेनर मॉलिक्यूल ना। कैसे पता चला प्लेनर है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इज ऑड। ओके सर। तो वैसे भी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स ऑड होगा तो वो एक ही प्लेन में आ जाएंगे ना, ए बी एक्स और वाई। ओके, सो कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? एक्टिव। सर एच वाले प्लेन से काटा तो आ जाएगा ना पीओएस। इतना सोचना ही नहीं है ना, सीधा कर दो। a इज इक्वल टू बी चेक करो और x इक्वल टू वाई चेक करो, ये दोनों चेक करो ना। अगर आपको विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो सीधा ऐसे चेक कर लो, a इक्वल टू बी एंड x इक्वल टू वाई। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुए, a नॉट इक्वल टू बी एंड x नॉट इक्वल टू वाई, देन इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। बट फिलहाल प्रॉब्लम क्या हो रहा है? H, so A is equal to B, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब पीओएस है। करेक्ट। यहाँ पे ये A है और ये B है, तो A is equal to B, बस वहीं पे खत्म हो गया और कुछ चेक करना ही नहीं है। Since A is equal to B, this will be optically inactive. Okay. Next. What about this? Optically active. हाँ, क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव सर। Yes. So again we'll check, A, B अलग है, X, Y अलग है।
ऑप्टिकली एक्टिव। राइट, तो यहीं पे वही लिखा है मैंने, ये लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट दिस वन, इसके लिए क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए इसके लिए? एक्टिव। बता नहीं सकते ना, अभी ए बी एक्स और वाई पे डिपेंड करेगा ना, बिकॉज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इज इवन। Even. When the number of double bonds is even, we have to check कि A is equal to B, A is not equal to B, X is equal to Y और X is not equal to Y, वो सब चेक करना पड़ेगा। So number of double bonds even हो गया है, 4 is an even number, right? So ये बोलना पड़ेगा। अगर A और B एक नहीं है, सिमिलरली X और Y भी सेम नहीं है, तो ही ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। So again, A should not be equal to B, X should not be equal to Y, then only it will be optically active. Because the number of double bonds is even. Okay. सर सेकेंड रूल एक बार दिखा सकते? Second rule मतलब सेकेंड एग्जांपल सर थर्ड वाला गॉट इट सर, थैंक यू। तो हो गया यहाँ तक, ये लिख लो। सेम थिंग अगर इवन और नॉट का ही है, बट हाँ अगर इवन हो गया तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ए और बी भी आपस में सेम नहीं होने चाहिए और एक्स और वाई भी आपस में सेम नहीं होने चाहिए। ऑड है तो क्या होगा? सिंपली से इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑड में तो चेक करना ही नहीं होता है ए बी एक्स और वाई को। Okay, next. Similarly, we can have optical isomerism in spiro compounds. मैंने बोला था लास्ट टाइम भी आपको कि स्पायरो हो, डबल बॉन्ड हो, अगर एक के बाद एक है तो मतलब उसका अरेंजमेंट वही रहता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में। तो जो रूल्स आप एलिन्स या क्यूमुलेंस के लिए फॉलो कर रहे थे, वही रूल्स आप यहाँ पे भी फॉलो करोगे, बिकॉज यहाँ पे भी जो रिंग्स है वो एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो सेम रूल्स विल अप्लाई हियर। तो क्या होगा इसका आंसर पर? फर्स्ट वाले का क्या लिखना है? How many rings are attached? There are 3 rings. There are 3 rings. 3 is an odd number and even number. Odd number. तो odd number होगा तो क्या बोला था मैंने? This x and y will lie in the same plane. तो सीधा क्या बोलना है? ऑप्टिकली एक्टिव कि इनएक्टिव?
इनएक्टिव। तो वही है, यहाँ पे वही बोला है। Okay, next. What about this one? Optically active. Optically active if A is not equal to B and X is not equal to Y, because the number of rings is now even. Okay. Similarly, we can extend the idea here also. Alkylidine cycloalkanes में, तो अल्काइलिडीन साइक्लोअल्केन्स का मतलब क्या होता है? एक रिंग और फिर डबल बॉन्ड, या फिर डबल बॉन्ड और फिर एक रिंग। Again, same idea will be used. Count the number of rings and the number of double bonds, and then see whether the sum of the number of rings and number of double bonds is even or odd. Optically active. तो फर्स्ट वन क्या होगा? नंबर ऑफ रिंग्स प्लस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितना है? 2। एक रिंग डबल बॉन्ड है, 2 आ गया। 2 is an even number. The moment you get an even number, what will you do? You will check whether A is equal to B, that is if A and B are equal or not, and then X and Y also are equal or not. If A is not equal to B and X is not equal to Y, then only it will be optically active. So same thing. Sir, Yes. can you show the subtopic? अल्काइलिडीन साइक्लोअल्केन्स का मतलब ये होता है कि एक रिंग और फिर डबल बॉन्ड, या फिर पहले डबल बॉन्ड और फिर रिंग, इसको बोलते हैं अल्काइलिडीन साइक्लोअल्केन्स। सर आप बोल सकते वो इवन होगा सम, तो वो ऑप्टिकल आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकल एक्टिव होगा प्रोवाइडेड ये A और B अलग हो और सिमिलरली X इज नॉट
equal to y. लिखा है ना यहाँ पे a is not equal to b and x is not equal to y, तो ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा. Sir, compound. Okay, what about this? Now I'm asking, tell me, if I have this molecule, तो ये क्या होगा? Is this optically active or optically inactive? So optically active. Things काउंट करो टोटल, सम क्या है? How many rings and how many pi bonds are here? Sir, both 1 1. मतलब सम क्या हुआ फिर? 2. Sum is 2. 2 is even or odd? Even number. Even number. अगर even number हुआ तो फिर क्या करना होता है? Sir, a is not a equal to b and x equal to y. चेक करना होता है कि a हाँ सर, और वो b check क्या करो. है और x और y. तो ये a मान लो, ये b मान लो, तो हो गया a नॉट इक्वल टू b. यहाँ पे और यहाँ पे क्या हुआ? x नॉट इक्वल टू y. तो हो गया, so it will be optically active. Right. अगर ऐसा किया तो what about this one? Optically active or optically inactive? Sir, inactive. Number of pi bonds plus number of rings is equal to 2. 2 is an even number. Right. Even number है तो क्या करेंगे? चेक करेंगे. A is not equal to B and X is not equal to Y, वो वाला कंडीशन. तो ये फ्लोरीन को X मान लो, क्लोरीन को Y मान लो, तो हो गया X not equal to Y. Yes, तो sir. फ्लोरीन is not equal to क्लोरीन. यहाँ पे चेक करेंगे, कुछ नहीं बोला है, मतलब क्या है? हाइड्रोजन है. Hydrogen. तो ये A और ये B, so A is equal to B. प्रॉब्लम हो गया ना, A is equal to B आ गया. X not equal to Y भी आया, लेकिन ये भी तो आया. तो ये दो कंडीशंस में से एक फुलफिल हुआ और एक फुलफिल नहीं हुआ. दोनों फुलफिल होने चाहिए. दैट इज A should not be equal to B and X should not be equal to Y. अगर दोनों फुलफिल हुए तो ही वो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा. और यहाँ पे क्या हो गया? एक फुलफिल नहीं हुआ, A is equal to B आ गया. So what will happen to this? Inactive. Inactive हो जाएगा. Correct. Why inactive? Because this condition has been violated. ये ठीक है, लेकिन ये वायलेट हो गया ना. दोनों ही होने चाहिए तो ही वो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा. कोई भी एक वायलेट हो गया अगर, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा. So this will be optically inactive. Okay. Next, what about this one? क्या इसके बारे में क्या बोलना है?
Active. How can we say? नहीं बोल सकते ना. क्या बोलना है फिर? Saying not equal to B, X not equal to Y. A not equal to B or X not equal to Y, then optically यस. इवन है, एक रिंग और एक पाई बॉन्ड है, तो वापस 1 + 1 is equal to 2. 2 is an even number. The moment 2 is an even number, then we will say this will be optically active if A is not equal to B and X is not equal to Y. ऐसा बोलना पड़ेगा आपको. डायरेक्टली नहीं बोल सकते एक्टिव है कि इनएक्टिव है. Sir, can you show the diagram? Okay, what about this one? ये आप खुद बताओ. Now you know the logic. Sir, inactive. Inactive. Why? Two Double bonds bonds and and one. cyclic ring is 3. That is odd number. That's all. Correct. Count करो number of double bonds and number of rings. 2 डबल बॉन्ड से एक रिंग है. 2 + 1 is equal to 3. This is an odd number. बस एक बार odd आ गया तो और कुछ देखना ही नहीं है, सीधा बोल देना ऑप्टिकली इनएक्टिव. अब ये मत बोलना कि ए बी और एक्स और वाई को चेक करना है. चेक करना ही नहीं है, सीधा बोल देना है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है. Why? Because the sum of number of rings and number of pi bonds is equal to odd number. तो ए बी एक्स और वाई एक ही प्लेन में लाई करते हैं, इसके लिए कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी का चांस नहीं है जब पूरा का पूरा एक ही प्लेन में हो. So straight away we'll say this. Okay, what about this one? Sir, we'll check A, B, and X, Y. Why? Sir, because even number, sum of ring and double bond is even. Yes. So there are 3 double bonds and there is 1 ring.
ऑल आर कंसेक्यूटिव, ऑल आर कंसेक्यूटिव, एक के बाद एक है ना सब। तो क्या करेंगे, सम चेक करेंगे। एक रिंग 3 पाई बॉन्ड्स, सम क्या आएगा 4, 4 इज एन इवन नंबर। तो अगर इसको ऑप्टिकली एक्टिव होना था तो इवन नंबर है, तो ये करना पड़ेगा, check whether a is not equal to b and x is not equal to y. If a is not equal to b and also x is not equal to y, then only this will be optically active. Sir, please tell structure. Okay, now I want to ask question. उसके पहले बता देता हूँ। Question is this. ये क्वेश्चन है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, तो मैं बता देता हूँ मतलब क्या है। हाउ मेनी सिस्टम्स आर शोइंग स्टीरियोआइसोमेरिज्म, मतलब क्या है कि कहाँ कहाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और कहाँ कहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है। ऐसे कितने सिस्टम्स है जो जीआई दिखा रहे हैं और ऐसे कितने सिस्टम्स हैं जो ओआई दिखा रहे हैं, दोनों का ऐड करके आपको आंसर बोलना है। तो इस केस में क्या हो रहा है, दिस इज वन chiral कार्बन, दिस इज द अदर chiral कार्बन, और कोई स्कोप नहीं है कहीं पे chiral कार्बन का। Also there is no scope for geometrical isomerism here. तो सीधा हम लोग क्या बोलेंगे,
two systems are showing stereoisomerism. दो सिस्टम यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। Now let's try to solve the next question. You will try now the next question. How many systems are showing stereoisomerism? Sir, 2. बाकी कोई? 3. 4. How many systems are showing stereoisomerism? तो ज्योमेट्रिकल भी देखना है, ऑप्टिकल को भी देखना है, मतलब दोनों का टोटल मिला के आंसर देना है। तो अब देखो, दिस इज वन chiral carbon, correct? So that is one system. Across this double bond there is GI possible, so this is another system. कितने systems हुए? Sir, 2. So there are two systems here also. Okay. Another one. What about this? How many systems are showing stereoisomerism in this? Sir, 3. First of all, यहाँ पे तो कोई GI possible होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे CH2 है, तो यहाँ पे तो GI होगा नहीं, होगा और कोई chiral सेंटर है इसके अंदर, पूरे मॉलिक्यूल के अंदर? No, sir. नो, कोई भी chiral कार्बन नहीं है, सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का स्कोप है इसमें, कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का स्कोप नहीं है, क्योंकि कोई chiral कार्बन नहीं है। तो क्या बोलोगे यहाँ सर, पे? अगर सूडो कायरल कार्बन एटम रहा तो हम बोल सकते हैं क्या कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा? हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, उसको भी गिनना है। ओके, तो अभी क्या है फिर? हाउ मेनी सिस्टम्स आर शोइंग स्टीरियोआइसोमेरिज्म इन दिस? Only one. ओनली वन। ओके, रीड द क्वेश्चन। सिस्टम्स पूछा है और कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ सिस्टम्स पूछा है। तो सिस्टम मतलब क्या? ऑप्टिकल को भी देखना है, ज्योमेट्रिकल वाला भी देखना है, बिकॉज स्टीरियोआइसोमेरिज्म के अंदर दोनों ही आते हैं, ज्योमेट्रिकल भी और ऑप्टिकल भी। ओके, okay. How many systems are showing stereoisomerism in this? How many systems are showing stereoisomerism in this one? कोशिश करो, now you know the concept. बताओ क्या आंसर होगा? Sir, 1. Anybody else? कौन सा? यहाँ पे क्या है? ज्योमेट्रिकल तो होगा नहीं यहाँ पे कोई। ऑप्टिकल के लिए chiral कार्बन चाहिए। कहाँ पे है chiral कार्बन यहाँ पे? सर, सूडो कायरल कार्बन। स्यूडो भी नहीं है, किधर स्यूडो होगा? This group and this group are identical, but क्या इसमें कोई GI या OI है? नहीं ना? Yes, no, नहीं रहेगा।
तो यहाँ पे कोई कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि ये जो कार्बन होगा दिस वन विल बिकम अकायरल। Why achiral? Because it has two identical groups. These two are identical groups. और उस आइडेंटिकल ग्रुप के अंदर ना ही कोई Gi है ना ही कोई OI है, तो बीच वाला कार्बन अकायरल कहलाएगा। अकायरल है मतलब क्या? There is no possibility of optical isomerism. Hence, zero system is showing stereoisomerism. So the answer is 0. Sir, Any doubt? sir, sir, pseudo optical isomerism. कहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा? नहीं सर, pseudo कारण optical isomerism दिखाता है। हाँ दिखाता है। वो कैसे दिखाता है that we will do later. But achiral हो गया अगर, तो achiral will not show optical isomerism. अकायरल का मतलब क्या है? जो कायरल नहीं है, जो स्यूडो कायरल भी नहीं है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you.